करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर में गुरपुरै मेरी राख ली अमृत नाम हृदय में दी जन्म जन्म की मैल गई। सतनाम वाहिगुरु साहिब मृग मीन भृंग पतंग पूंचर एक दुख विनाश पंच रोग असाध जान ताकि केत क्यास। मृग मीन भृंग पतंग पूंचर एक दुख विनाश पंच रोग असाध जान ताकि केत क्यास। माधो आप विद्या हित कीना विवेक दीप मली। माधो आप विद्या हित कीना विवेक दीप मली। परम सम्मान जुगो जुगता चबर चपर तखते मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के सन्मान में जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जन, आप जी अति वडभागे हो जो इस वक्त सतगुरां के चरणों में हाजरियां भर के सतगुर जी वालों बख्शिया हुआ अमोलक मनुखा जन्म सफल कर रहे हो। सर्व म्यूजिकल ग्रुप फेसबुक पेज के राही अपने अपने घरों के विच अपने अपने साधना के मुताबिक इस समय सतगुरां के चरणों में जुड़ बैठे हो। फेसबुक के पेज के मुताबिक सर्व म्यूजिकल ग्रुप के 6 तो 7 बजे तक आप जी ने भाई गुरदास सिंह जी उन्होंने को कीर्तन सर्पण किया है। 7 तो 7:30 बजे तक ज्ञानी सुखा सिंह जी ने आप जी को गुरमत विचारों का ध्यान किया है। आपने हूँ जो पंक्ति श्रवण की है भगत रविदास जी की उच्चारण की है, आओ इस पावन पंक्ति की विचार गुरु साहब जी की कृपा नाल सांझी करने तो पहला आशीष बख्शो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो सारे आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि जिस वेले मनुख को कोई शरीरक रोग लगता है, कोई बीमारी है, उस वेले मनुख जिहड़ा है वैद हकीम डॉक्टर के कोल जाता है, अपनी बीमारी दसदा है कि हुण डॉक्टर जिहड़ा है दवाई तो दे रहा है। हुण कई बीमारियां ऐसियां हैं जिहड़ियां जड़ों खत्म नहीं हो सकती,
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 5 ਰੋਗ ਹਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾੜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਲ, ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਹੈ, ਪਤੰਗਾ ਹੈ, ਭੌਰਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਲ, ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, 5 ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤ ਕਾਰਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੋਗ? ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਤੋ ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਬਲੀਪ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਫਰਕ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮ੍ਰਿਗ, ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਮ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਢਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
कहते गंदन बैन रता हितकारी, गंदे गाणियां दे नाल प्रीत है, शब्द सुरत ना। पर शब्द की कहता है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਐਸਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕੰਨਾ ਬੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋੜ ਘਚੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗੀਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗੀਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, पर जिस वे संगीत को उन्होंने गाणिया के नाल गाया जाता, जोड़ा सानू जेडे असीं अपनी भैन के नाल बैठ के अपनी धी के नाल बैठ के सुन नहीं सकते, तो संगीत माड़ा। हुण एको चस्का सी मृग हिरन खत्म हो गया। फिर अगे उदाहरण दी है मीर। मीर कहते मच्छी, मच्छी को खाण का चस्का। जिस वे बड़िया मछलियां फड़ते, छोटा जहा मामूली जहा मास लाते टूटी दे, वो मछली जी खाण वास्ते पहुंच जाती है, उन्होंने ये नहीं पता कि मास के अंदर कुंडी भी है, उन्होंने फसा के बाहर कढ़ देंगे। एक खाण का चस्का, बंदा कितना कुछ खा ले, बंदे ने तो हद कर दी, बंदे भी खाते। असीं इतिहास में एक नाम सुनते हैं गुरु के प्यारे, और तुसीं सुनिया भी होना पौधा रक्ष बंदे खाते थे, गुरु साहब ने उन्होंने समझाना भी उदाहरण, लोग सप खाते, सप। पर ये किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां वो पुरख खा रहे, जिहड़ियां चीज़ां ये जीवन के मुताबिक, फिर जिन्ना खा रहे उन्ना बीमार हो रहे। तो हॉस्पिटल जिहड़े आ ना, इन्ने जानवरों के भी होंदे जिन्हें बंदियां के हॉस्पिटल। हुण अपने शहर के एक अद्धा हॉस्पिटल होएगा जानवर, तो बंदियां के कितने हैं, तो बंदे बीमार हो रहे हैं ना बार बार, ये खा रहे, इन्ना कुछ खा रहे, दंद घस गए, हले भी रसां दे विच फसिया हो। बाणी कहती आ खांदिया खांदिया मूँह कट्ठा, पैण दिया सब अंग, त्रिक तिना का जीव्या जिन सच ना लगो। जे परमात्मा नाल प्यार नहीं बने, और एक गल बेनती करते हैं, रसोई भी बंदे की है। तुम देखिए कभी पंछियों की रसोई हो गई, जानवरों की रसोई, हाँ जानवरों की रसोई कौन बनाता, मझां की गावां की कौन बनाता, बंदा बनाता। जिन्हां दी मझां गावां रखियां उन्होंने कहते खुरली, जिहदे विच पट्ठे पाउंदे आ, जो गावां मझां खांदियां, बंदा भी बना रहा, उन्होंने तो नहीं बनाया। तो वो इन्ना कोई परेशान नहीं खाण पीण, मैं जिदा खाण पीण तो परेशान बहुत है, एक एक हफ्ते का मीनू बनया शायद, हले भी खाण तो परेशान, हले भी रसना जी है वो रसां के नाल रजी नहीं। तो जे हुण इन्हां रसां तो रसां रजांगे तो अगे जाके परमात्मा के रस के आनंद आएगा जी। तो हुण हो ही रहा है, बंदा वो खा रहा खुशी वास्ते सी, पर वो खवा रहे। कहते बाबा होर खाना खुशी खवा, जित खाते तन पीर, मन में चले बचा। हाँ जी डॉक्टर कह रहे ना फिर तो खाना छड़ देगा, ये सतगुरु कहते हैं। बाणी के विच ऐसी कोई चीज़ नहीं जिथे गुरु साहब ने समझाना नहीं किया। सतगुरु कहते आ, दसवेश पातशाह जी के वचन कहते अल्प हार सुरभ सी निंद्रा, दया सेवा दानती। ताही परमात्मा की भक्ति में जोड़ेगा। थोड़ा समय थोड़ा ही खा, भाई गुरदास साहब जी के वचन। रसोई भी जी बंदे की है, हंकार भी बंदा कर, और ब्राह्मणों ने तो बहुत ज्यादा हंकार किया। ब्राह्मणों ने की किया, चौका बनाते सी भी वो किसी का परेशाना ना पै जाए। को आप साखी भी सुनते पढ़ते हैं हर दवार की, भाई मरदाना जी चल गए अग लैन वास्ते, तो अग लैके मगर भजया तू मेरा चौका भ्रिष्ट कर। बड़े सोहने शब्द बाणी के
कहते अत सूची तेरी पाक सार, वो किसी की नहीं है, ना पंछियों की ना जानवरों की रसोई है, तेरी रसोई है। अत सूची तेरी पाक सार, कर इशनान पूजा तिलक लाल। इशनान करता है, पूजा करता है, लाल तिलक लाता है। पूजा इशनान तिलक लाल वो भी कर रहा है। फिर हम रसोई का हंकार भी करता है कि मेरे ते किसी के वर्गी, मेरे वर्गी किसी की रसोई नहीं है। गली गर्भ है मुख गोब है ज्ञान, गला गर्भ भी करता है भी असी 84 लाख चूना तो बहुत वड्डे हैं, सानू बहुत कुछ है, साढ़े को बहुत अनाज है। गली गर्भ है गोब है मुख ज्ञान, ते मुख के नाल ज्ञान को लोगों को दसदा है। मुख गोवे ज्ञान पर कहते सब विद कोई लोभ सुआन, ये सारा कुछ किया सी पर अंदर जो लोभ का कुत्ता बैठा है उन्हें सब कुछ बर्बाद कर। गुरु साहब ने नहीं कहा कि खाना नहीं है, कहते वो खाना जिहदे नाल, क्योंकि कई लोग खाने वास्ते जीते हैं, कई जीण वास्ते खाते, उन्होंने खाना ना बिना के शरीर चल रहा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ है सिर्फ एक औगण करके फस गई, मृग मीन भृंग जो भवरा है ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਔਗਣ है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਘਣ ਦਾ। तुम कितना बंदे सेंट ਜਿਹੜੇ मुसलमान ईद होंगी किन्ने सेंट लाते, आप भी कहते ना बाजार आ नहीं चंगा आ नहीं चंगा, बंदा सुंघता है, ਉਹਨੂੰ बार बार खुशबू देखता, आ चंगी नहीं है दूसरा देख लो, आ तीसरा दिखा दो, चौथा दिखा दो, कोई नवा आया वो दिखा दो, कि बंदे के अंदर भी है। वो भवरा जो है ना फुल के उपर बह जाता है, तो वो रस में चूसदा, वो रस में इन्ना मस्त हो जाता, उडारी भुल जाता। अब तुम कदे देखो सिर जाके कमल के फुल जोड़े होंगे बाजार के भवरे जोड़े मरे हुए, कारण भी अपनी उडारी भुल। एक ही औगण वो भवरे मृग मीन भृंग पतंग, पतंगा जोड़ा है उन्होंने रोशनी का, हाँ सानू तो सोहनी रोशनी कर दी, बंदा वधिया तो वधिया रोशनियां लाता है, तो वो दीवे की लाड़ के उपर मर जाता है, दीवे की लाड़ के उपर खत्म हो जाता पतंगा जोड़ा है। तो सतगुरु महाराज अगे उदाहरण दे रहे हैं, कूंचर हाथी जोड़ा है उन्होंने एक औगण वो भी है, उन्होंने काम वासना है, वो अंदर काम वासना जिदा पढ़ाते ना दशहरे के रावण ये टोया पुट के उपर हाथी तैयार करते हैं, वो हाथी जो हाथ होता थोड़ा काबू आ जाएगा, वो काम वासना के मस्त होया उत्थे जाता जो पैर रखता ना वो कानिया की कढ़ाई होती छत वो पैर रखता तो टोए के डह जाता, कितने दिन भुखा रखते हैं, भुखा रखने तो बाद फिर उन्होंने काबू करना, तो फिर बच्चे लैके हाथी में घूमते हैं, देखना मुहाबत के बच्चे लैके घूमते, काबू आ गया। एक ही औगण मृग मीन भृंग पतंग कूंचर एक दोख विनाश, और सतगुरु कहते पंच रोग असाध जान ताकि केत क्यास, जिहदे विच पंज होण, एक तो हटे दूसरा चिमड़ जाएगा, दूसरे तो तीसरा चिमड़ जाएगा, वो सारी जिंदगी इतने निकल जाती है। काम क्रोध लोभ मोह हम, और सतगुरु ने बहुत बड़ी साडे ते कृपा की, सानू इन्हां नूं काबू करन दा दस। सिख गृहस्थी हो गए ते गृहस्थी होना चाहिए सिख नूं, साडे 9 गुरु गृहस्थी है, गृहस्थी होना चाहिए सिख को, कामी नहीं होना चाहिए। सिख कामी ना हो, सिख गृहस्थी हो। ये शक्ति का मैं पहला बेनती की शक्तियां हैं, इन्हों कंट्रोल के रखना, तो बड़िया उदाहरण सतगुरु ने जीवन में दसी, क्योंकि ये दो चीज़ा ऐसिया हैं, काम के क्रोध, ये शरीर को गाल देंदियां। काम क्रोध काया को गाले क्यों कंचन सुहागा ढाले। गुरु नानक साहब पातशाह जी संगला दीप गए,
ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਿਵਨਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੁਖ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਮਾਨਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦੇ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰਾਦੀਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਜ ਦੇਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 1187 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ। ਗਾਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਬੇਟਾ ਜਾਓ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸੁਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੋਤ ਸੁਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਨਾਨਕ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਖਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਖਾਣੇ। ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸਿਉ ਰੱਤ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਰੋਧ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲ, ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ ਕਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਦੋਨੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ।
कहने कि महाराज इन्होंने केड़ा चंगा काम किया। वो कहना कि नरक का भोग के आई है ना थले ते स्वर्ग जिहड़ा क्रोध है, क्रोध का जीवन के विच बर्बाद कर दिंदा है। ते अगली जिहड़ी चीज़ है वो है लोभ। जिहड़े पंज काम, क्रोध, लोभ जिहड़ा है, लोभ जिहड़ा है गुरु साहब महाराज कहते एक होता है जीवन के विच कि मैं सोना तो एक मंजी ते है, मैं दूसरी ते भी हाथ रखे, मेरे को पांच मंजियां ते वो भी हाथ रख के बैठा, देना किसी को नहीं है। पकड़ है वो है लोभ, लालच जिहड़ा जीवन के विच। ते लोभ जिहड़ा है लोभी जंत ना जानी भख अपख सब। ते लोभी की करता सहस घटे लख को उठावे तिरक ना आवे माया बचेगा। जिहड़ा उहदे कोल है ਉਹਦਾ आनंद नहीं मानता, दूसरे की थाली देखता भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੱਡਾ लगता है। लोभ के वास्ते बहुत कुछ करता है। लोभ वास्ते तो बंदा धार्मिक कर्म भी कर लेंदा है। लोभ भावें 10 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, 500 का, लोभी जिहड़ा लोभी। एक दिन मैं कहानी सुनी सी लोभी की, तो वो है तो विद्वान सी, पंडित सी, पर लालची भी सी। सवाल जवाब बहुत करता सी। एक जंगल में महापुरुष आए थे तो उन्होंने को चला गया, उन्होंने जाके कहता भी मैं तुम्हारे को सवाल पूछना तो जवाब दो कि कहते दस। कह लगा जी दसो पाप का बाप क्या है। पापी का अभी सारे पाप करता बंदा पापी है। पाप का पाप पैदा कितों होता है, पाप का बाप क्या है। तो महापुरुष ने आख्या भी सुनना ही है तो दर्शन करने हैं, ये सुनना ही दर्शन करने। कहने लगा सुनिया तो बहुत है, दर्शन करा दो। कहने कल आई, उस दिन फिर चला गया। वो कहने लगे बेटा इतना गल है, मैं कल तुम दसना भुल गया, मेरे को ना एक पारस है, ये सारे पता भी पारस जो 8 धातुओं बदल देता, मेरे को पारस है। तो मैं पारस किसी को देना क्योंकि मैं जंगल में जा रहा, जे अगे कोई लुट लवे मैनू भी जानू मार दे तो खतरा है ना। तो कहना जी मैनू दे दो। वो कहने लगा भी दे तो देंगा पर एक शर्त है, आ मेरे को एक बकरी है ते आ एक कुत्ता रखे है, बकरी का दुध चोना तो वो भांडा मेरे को है, वो मैं कुत्ते को दुध पिला देना। तो आ भांडे में जो दुध पिएगा ना तो मैं उन्होंने वारस दे तुम पिओगे। कहना लगा नहीं हारे हारे ये काम असं थोड़े कर सकते, नहीं तो ब्राह्मण लोग हैं। फिर उन्हें थोड़ी देर बाद सोचा कि इतने कड़ा कोई देखता है, जंगल में बैठे हूँ पी लो पास लै लो, इतने कड़ा कोई देख रहे हैं, गंगा जल पी लाँगे पवित्र हो जाएंगे। कहना दे दो महापुरुष। उन्हें बकरी का दुध चो के भांडे के जिद कुत्ता पीता सी, वो भांडा अगे पीता तो फड़ लगा, तो जो पी लगा ना हाथ मारे महापुरुष ने, तू मैनू पूछया भी पारस कितने है। कहता नहीं, कहता यह है पाप का बाप, लोभी जंत ना जानी भख अपख सब खाए, नहीं भुखना तो भी खाएगा। हम जो आप किसी रोटी खिलाओ ना, जो पूछे रोटी हो तो कहते नहीं बस हो अधी लैवल चल पूरी दे दे। ये लोग होंगे जब हम पेट भरे गया है तो वो हम उस तो बाद की कर सकते, बाबा होर खाना खुशी। एक है मोह, चौथा जो मोह जो जानवरों के बहुत। मैं एक बांदरी देखी सी, बांदरी अपने मरे हुए बच्चे का मांस भी लैके ढोंदी, इन्ना वो मोह होंगे। पर गुरु साहब ने सानू प्रेम सिखाया, प्रेम सिखाया, प्रेम किया साहिबजादे नाल प्यार करते। हम दोनों अपने सामने शहीद कराते हैं, दोनों अपने सामने शहीद कराया, दोनों माता जी के नाल तोड़ देता। हम सब कुछ पता गुरु साहब को की होना है, पर है तो दिल बाप का दिल सी, अंदर प्रेम से, पर अपने पुत्रा नालों साडे नाल प्यार ज्यादा किया। जो माता जी ने पूछा मेरे 4 साहिबजादे कितने, कहते इन्हें पुत्र के शीश पर बार दिए सुत चार, चार मुँह तो क्या प्यार जीवत कई है। वो जीवन जो सतगुरु महाराज ने सारे जीवन के बख्शिश कर, एक है हंकार, किसी चीज़ का भी हंकार हो सकता। सतगुरु महाराज के चरणों के यही अरदास करनी है कि काम क्रोध और लोभ मोह बिन सजाए हमें नानक प्रभ शरणागति कर
प्रसाद हो, हे परमात्मा तू कृपा कर, बख्शिश कर। तो जो असीं उहदी शरण में आवांगे, जो उहदी शरण पकड़ांगे, तो सतगुरु महाराज कहते प्रभ हस बोले किए न्याय, सगल भूत मेरी सेवा है। ये उन्होंने सेवा में ला लिया, खत्म नहीं होने एक प्रकार, पर उन्होंने बरतन का ढंग आ जाएगा, वो रहन का ढंग आ जाएगा। तो जिदा अरदास सिखाई गुरु साहब ने कहते राग पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, पंज विखाती एक गरीबा राखो राखण हारे, खेत कर बहुत संतावन आयो सब। साढ़े काबू में नहीं आ सकते। हाँ वो नजर हो जाए, वो बख्शिश हो जाए। जैसे रोज पढ़ते हो पंज दूत तो बस किते काल कंटक, वो कृपा करता है। तो ये विकार जिहड़े काबू के आ सकते हैं। नहीं तो जे असीं इनकार करिए, जे अज्ञानता के विच रहांगे, माधो आ विद्या हित कीन विवेक दीप बनी। तो ये जिहड़ा विवेक का दीवा है, सतगुरु ने साडे ते कृपा करके सानू बहुत वड्डी बख्शिश दी कि इन्हां तो बचना, इन्हां विकारां तो बच के अकाल पुरख परमेश्वर के नाल असीं किदां जोड़ सकते। ये पांच विकार जिहड़े कदे कोई, कदे दूसरा, कदे तीसरा, कदे चौथा शुरू हो जाता, पर नहीं जिद्दन असीं उहदी शरण विच आउंदे हां, उहदे नाल जुड़दे हां, ते ये जीवन सतगुरु महाराज साडा जिहड़ा है वो सुचज्जा बना दिंदे आ। तो इन्हों फिर असीं जित सकते हैं। पर गुरु की कृपा पंज दूत दुध बस काल कंटक, पर किहनूं कंटक तुर करम पाया दुध जी से नाम हर के लागे। जो साडे अंदर लगन लग गई तो असीं गृहस्थी बनना है, काम ही नहीं बनना। असीं जीवन के विच गुरु साहब ने क्रोध नूं जिहड़ा है वो वीर रस दे विच बदल, वीर रस दे विच क्रोध नूं बदल। क्योंकि हम ये चीज़ा मैं जिदा बेनती की है भी क्रोध जोड़ा है, तो बंदा नहीं कहता भी मैं क्रोधी हाँ, मैं गुस्सा आ गया। मैंने गल याद है कि कहते वो युधिष्ठिर जो द्रोणाचार्य को पढ़ता है, कहना भी लिख लो खट्टियां के उपर लिख लो, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना। ठीक है। दूसरे दिन सारे ने पूछा कि कल की तुहानूं पढ़ाया सी, क्रोध नहीं करना चाहिए। जिहड़ा युधिष्ठिर सी उन्हें 4 दिन की जाप किया, 5वें दिन द्रोणाचार्य ने वो थप्पड़ मारिया। तेनों याद क्यों नहीं होता, इन्नी क लैन तेनों याद क्यों नहीं होती? वो कहना याद तो हो गई सी पहले दिन। क्रोध नहीं करना चाहिए, जे अमल के विच लियाउणा सी, ये मैं देख रहा तुसीं करके दिखा दिता। क्रोध नहीं करना, क्रोधी नहीं वीर रस के विच गुरु साहब ने बदलिया। लोभ नहीं, लालच की करना है, ये लालच हाँ गुण तो चलो ये लालच करिए कि फलाना अमृत वेले उठना, मैं भी अमृत वेले उठा। लालच ये करिए फलाने ने अमृत छक लिया, मैं भी अमृत छक। लालच इन्हां गुणों का लालच कर लीए, पैसों के लालच पिछे नहीं, पदार्थों के लालच पिछे नहीं। मोह करना है तो अपने गुणों के नाल कर लो, अपने प्रेम करना अपने गुरु नाल कर लो, अपनी सिक्खी के नाल कर लो, अपने सिद्धांतों नाल प्यार कर लो। हंकार नहीं, मान करना है कि हे परमात्मा मान करो तो पर मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सत घूटते तुम बख्शनहारे। समय की समाप्ति आखिर के सारिया संगतां ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का धन्यवाद करना ते सर्व म्यूजिकल ग्रुप उन्होंने वीरों का धन्यवाद है जिन्होंने आप जी के रूप कराया है। सतगुरु कृपा कर असीं सिੱਖੀ सिद्धांतों के पहले तो गुरु पातशाह की बाणी के उपदेशों के धार्मिक बन सकीए। यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। सारे सतगुरु महाराज जी चढ़दियां कलम बख्शिश कर। बधाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।